In today's session, we are going to see types of partner. Now, we have seen partnership firm, features of partnership firm, and in today's session, we are going to see types of partner. First one is active partner. See, as the name suggests, an active partner is one who take active participation in the day-to-day working of the business. Active partner may act in different capacities such as manager, organizer, advisor, and controller of all the affair of the firm. Active partner contribute to capital, share, profit or losses, has unlimited liability, joint and several liability. He is also known as working partner, ordinary partner, etc. This partner may get some extra benefit for his service rendered other than share in profit. See, active partner is one who take active participation in day-to-day working of business. Active partner may act in different capacity. Active partner जो है वो different capacities में काम करता है, such as manager, organizer, advisor and controller of all the affair of the firm. Active partner contribute to capital, share profit or losses, has unlimited joint and several liability. He is also known as working partner. उसे working partner भी बोला जाता है and ordinary partner भी बोला जाता है. This partner may get some extra benefit for his service rendered other than share in partner. अभी ये शेयर इन प्रॉफिट, ये जो पार्टनर है इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है फॉर हिज सर्विसेज रेंडर्ड अदर देन शेयर इन प्रॉफिट. सी, ये जो एक्टिव पार्टनर है बिजनेस में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. ही एक्ट इन डिफरेंट कैपेसिटी सच एज मैनेजर, ऑर्गेनाइजर, एडवाइजर एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल द अफेयर. एक्टिव पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट टू कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है. उसकी जो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल है. ही इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर, ऑर्डनरी पार्टनर एक्सेट्रा. और ये जो ऐसा पार्टनर है ही गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर हिज सर्विस रेंडर्ड अदर देन शेयर इन प्रॉफिट. डोरमेंट पार्टनर, अ डोरमेंट पार्टनर इज वन who contribute capital, share profit and contribute to the losses of the business but does not take part in working of the concern. A person may have money to invest but they may not be able to devote time for the business. Such a person become a dormant partner. Dormant partner are known as sleeping partner and these partner are liable for the liabilities of the business like other partner. He cannot bind the business, that is firm, to third party by his act. See, ये जो डोरमेंट पार्टनर है ये एक ऑर्डिनरी पार्टनर की तरह कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है. इसकी लाइबिलिटी भी जॉइंट कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट में शेयर करता है. इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. बट ये जो पार्टनर है इसे स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है बिकॉज ही मे नॉट हैव टाइम. He does not participate actively in day-to-day activities of the business. The reasons could be his personal reason. He might be engaged somewhere else. Because of that, it is not possible for him to take participation in the management of this business. So, because of this, this partner is known as sleeping partner, and this partner are liable for liabilities of the business like other partner. Now, next is nominal partner. A nominal partner is one who only lend his name to the firm. He neither contribute to capital nor share profit of the business. Due to his presence in firm, the business may get more extra credit in the market or may promote its sales. A nominal partner is liable to third party who give credit to the firm on the assumption of that partner being a partner in the firm. See, ये जो nominal partner है ये partner actual में he is not a partner. He neither contribute nor share. He just lend his name to the firm so that the business may get more credit in the market and the business can use his goodwill or may promote its sale. Next is secret partner. The partner who is not known to third party is termed as secret partner. His membership in the firm is kept secret from the outsider. The secret partner contribute to capital, share profit of the business, assume unlimited liability,
as he is liable for losses of the business, he can take part in the working of the business. सी ये जो सीक्रेट पार्टनर है, जो पार्टनर है हु इज़ नॉट नोन टू थर्ड पार्टी, मतलब ये जो सीक्रेट पार्टनर है इसकी आइडेंटिटी जो है वो सीक्रेट रखी जाती है. It is kept secret from the third party. His membership in the firm is kept secret from outsider. Secret partner contribute to the capital, share profit and losses of the firm, assumes unlimited liability, and he is liable for losses of the business. He can take part, he can participate in day to day working of the business, but it is just that he does not reveal his identity as a partner to the outsider. Next is minor as a partner. A minor is person who has not attained 18 years of age or age of majority as per the provision of Indian Contract Act 1872. A minor cannot enter into a contract according to Indian Contract Act because a contract of minor is void. However, a minor may be admitted for benefit of an existing partner with the consent of all partner. सी ये जो माइनर पार्टनर है वो माइनर जो है जो भी 18 एज अटेंड नहीं किया होते हैं उनको माइनर बोला जाता है. एंड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, and if so happen then the contract is void. However, minor may be admitted for benefit of an existing partner with the consent of all other partner. See, minors को सिर्फ benefits में हम as a partner उसे ले सकते हैं, and that too if you want to admit a minor as a partner you have to take consent, you have to admit him with the consent of all other partner. The minor is not personally liable for liabilities of the firm, but his name in the partnership property and firm and profit of the firm will be liable for debt of the firm. After attaining 18 years of age, he should give पब्लिक नोटिस अबाउट द कंटिन्यूएशन इन द फर्म. सी जो माइनर है वो पर्सनली कंपनी की लाइबिलिटीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट हिज नेम इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी लाइबल फॉर द डेट. मतलब जो पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉपर्टी है एंड पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है वहाँ से ही इज़ लाइबल फॉर डेप ऑफ द फर्म. बट माइनर जो है वो पर्सनली उसका पर्सनल प्रॉपर्टी इज़ not liable for liability of the firm. See, once a minor has attained once he is attaining the age of 18 he should give public notice. अब minor जब 18 एज कंप्लीट करता है तो he should give public notice about continuation in the firm, ताकि वो मतलब उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि वो कंपनी में कंटिन्यू कर रहा है. नेक्स्ट इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. when a partner agreed to share only profit of the firm and would not bind for would not bind or would not be liable for its losses, he is known as partner in profit only. Such partners share capital of the firm and may not take active participation in the management of firm. However, such partner are liable for all the debt of the firm. See, when a partner agree to share only profit of the firm, सी अगर पार्टनर है जो सिर्फ कंपनी की प्रॉफिट वो शेयर कर रहा है एंड वो लॉसेस के लिए लाइबल नहीं है तो ऐसे पार्टनर्स को पार्टनर्स इन प्रॉफिट बोला जाता है. ऐसे पार्टनर्स इन प्रॉफिट होते हैं. सच पार्टनर शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म. ऐसे पार्टनर कैपिटल लेकर आते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. बट ऐसे पार्टनर जो रहते हैं उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं रहता है. हाउएवर सच पार्टनर आर लाइबल फॉर ऑल डेप्ट ऑफ द फर्म. ये जो ये पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है ये लोग डेप्थ में लाइबल होते हैं. दे आर लाइबल, दिस पार्टनर आर लाइबल फॉर ऑल द डेप्थ ऑफ द फर्म. नो नेक्स्ट इज सब पार्टनर. When a partner agree to share their profit derived from the firm with the third person is known as sub partner. See, जब भी एक partner है, so for example A B C D 4 people they are ready to start a partnership firm. They all have agreed to start up a firm and they are ready to contribute. But the person C, he does not have enough to contribute to bring in the share which is required. So he
ही एडमिटेड अनदर पर्सन विथ हिम, उसने अपने साथ किसी और को भी क्या किया है, मिला लिया है। मतलब उसने उसने यहाँ पे जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है उसमें किसी और को भी उसने इन्वॉल्व किया है। तो ये जो सब, तो वो ऐसे पार्टनर को हम सब पार्टनर बोलते हैं। तो वो जो सब पार्टनर है, ही इज सब पार्टनर ऑफ सी, वो सी का सब पार्टनर है, बट ही इज नॉट पार्टनर ऑफ द फर्म, वो फर्म का पार्टनर नहीं है। हाउएवर सच पार्ट a sub partner cannot represent himself as the partner in the original firm. See, this one is I guess this one is clear. When a partner agree to share their own profit derived from the firm with the third person is known as sub partner. मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो सी है उसको उसके पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए कैपिटल इनफ नहीं, उसके पास उतना पैसा नहीं था, तो उसने क्या किया, अपने साथ किसी और पर्सन को भी इन्वॉल्व किया। बट यहाँ पे कंपनी में कौन पार्टनर है, सी पार्टनर है। एंड जो भी प्रॉफिट सी को मिलेगा, सी अपना प्रॉफिट क्या करेगा, वो पर्सन के साथ शेयर करेगा जो उसका फ्रेंड है। बट जो उसका फ्रेंड है, जो ही इज़ नोन एज सब पार्टनर एंड ही कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द कंपनी। जो सब पार्टनर है वो खुद को एज अ पार्टनर कंपनी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है पार्टनर्स विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। दिस टाइप ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट इन लिमिटेड partnership. The liability of partner is limited to the extent of the capital contributed by him in the firm. He is a special partner and generally does not take active part in the working of the firm. See, ये जो पार्टनर है, ये लिमिटेड पार्टनरशिप में ऐसे पार्टनर एग्जिस्ट करते हैं। ये जो पार्टनर है वो लिमिटेड पार्टनरशिप में वो एग्जिस्ट करते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। यहाँ पे जो लाइबिलिटी है पार्टनरशिप की वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म। उसकी लाइबिलिटी उतनी ही है जितना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है फर्म में। ही इज स्पेशल पार्टनर एंड जनरली ही इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। सी, ये जो पार्टनर्स विथ लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब इस पार्टनर का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट अटैच्ड। नेक्स्ट है कॉजी पार्टनर। कॉजी पार्टनर इज पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म हु रिटायर्ड फ्रॉम फर्म बट लेट हिज कैपिटल विद द फर्म। अभी कॉजी पार्टनर ऐसा पार्टनर है जो रिटायर हो गया है, फर्म से रिटायर हो गया है, बट उसने अपना पैसा, अपना कैपिटल क्या किया है, फर्म में छोड़ा हुआ है, अपना कैपिटल उसने छोड़ दिया है फर्म में। कॉजी पार्टनर डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म। ये फर्म में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेता है, बट शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बट वो कंपनी का प्रॉफिट शेयर करता है। सच पार्टनर इज लायबल फॉर डेप्थ ऑफ द फर्म। ये कंपनी के डेप्थ के लिए भी लायबल है। मेनी टाइम्स सच पार्टनर रिसीव सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। और ये जो कॉजी पार्टनर है जिन्होंने अपना कैपिटल कंपनी में छोड़ा हुआ है, मतलब ये जो कॉजी पार्टनर है ये लोग रिटायर हो गए हैं, बट इन्होंने जो अपना कैपिटल है उसको विड्रॉ नहीं किया है, उसको कंपनी में रखा है। तो इससे इनको ये जो कॉजी पार्टनर है इससे उनको शेयर मिलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म मिलता है, बट दे डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म बिकॉज वो लोग रिटायर हो गए। मेनी टाइम्स सच पार्टनर ऑल्सो रिसीव इंटरेस्ट ऑन दिस कैपिटल। ऐसे पार्टनर को बहुत बार क्या होता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। सो these are the types of partner. एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। डॉर्मेंट पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है बिकॉज ड्यू टू सम अदर कमिटमेंट वो इतना पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता। नॉमिनल पार्टनर सिर्फ अपना नाम लैंड करता है कंपनी के लिए। सीक्रेट पार्टनर है जो कंपनी में वो पार्टनर है, रेगुलर पार्टनर है, एंड वो कंपनी में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करता है, उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, बट उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो बाहर आउटसाइडर से छुपा के रखा है। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। ये जो अंडर 18 जो सबके कंसेंट से एज अ पार्टनर कंपनी में एडमिट हुए, तो ये माइनर पार्टनर है। दे आर ओनली पार्टनर इन बेनिफिट। ये इनके पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को ये लोग पर्सनली लाइबल नहीं है किसी भी लाइबिलिटी के लिए। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली से एज अ नेम सजेस्ट, ये जो पार्टनर है ये सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करते हैं, लॉसेस बेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सब पार्टनर। कोई एक पार्टनर है जो जिसका ये पार्टनर है, मतलब वो कोई एक पार्टनर है जिसने एग्री किया है कि वो अपना प्रॉफिट जो भी वो डिराइव कर रहा है फर्म से वो इसके साथ शेयर करेगा, बट ये जो सब पार्टनर है ही कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द कंपनी। अभी पार्टनर्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी, जो पार्टनर है इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। दे आर स्पेशल पार्टनर। इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द
capital contribution, up to the extent of their capital contribution. इनका personal property is not attached. अब last one is quasi partner. quasi partner ऐसे partner होते हैं जो retire हो गए होते हैं बट इन्होंने अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं किया होता है. they get profit as well as sometimes they get interest on the capital. Okay, with this I would like to end this session. Hope things are very clear to you all. Thank you.